students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. Today we are going to discuss CPD, citrate phosphate dextrose. This is used as anticoagulants in blood banking. So we will discuss its discovery, then its uses, and then we will discuss some of its advantages and disadvantages as well. So see over here. John G. Gibson developed a method for estimating in vivo red cell survival using double isotope procedures with chromium 51 and phosphate 32 isotopes to study the effect of blood preservative solutions. तो उसने क्या किया, जो गिब्सन था, एक्चुअली गिब्सन ने ये स्टडी किया और एसेस किया कि हम इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं जो कि बेनिफिशियल हैं एंड दे इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ब्लड सेल्स एज वेल, एंड दीज इन विवो स्टडीज प्रूव दैट दीज सेल्स कैन बी यूज्ड एज इन विट्रो एज वेल. Okay, further Gibson noted existence of high energy phosphate compound in blood collected in CPD, later found to be 2,3-diphosphoglycerate. तो इसमें जो एंजाइम है बेसिकली दैट इज़ 2,3-GP. अब 2,3-GP क्या करता है कि ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसके पास इनफ सफिशिएंट एंजाइम मौजूद है जो कि ब्लड सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाय कैटालाइजिंग डेक्सट्रोज. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस वन इज़ एन मोर इफेक्टिव वन एंड एफिशिएंट वन. Okay, further during research on why WBC seems to be better to do better in lower volume ratio of anticoagulants, it became clear that cells passively lose phosphate. तो इस केस में हम ये कहें रिसर्च में ये साबित हो गया कि ये पैसिवली जो है फॉस्फेट लॉस कर देती हैं. दैट्स वाई दिस वन इज़ वेरी पॉजिटिव factor. Further, adding sodium phosphate to ACD, this phosphate loss was reduced by reducing gradient in phosphate concentration between the inside and outside of the stored RBCs. तो जो सेल्स की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, इनसाइड द RBC and outside the RBC, this actually maintains the phosphate balance as well. Gibson first published the formula of CPD in 1957. So Gibson ने फिर इसको प्रॉपर रिकग्नाइज किया और स्टैंडर्डाइज भी किया और फार्मूला भी बनाया. अब एडवांटेजेस क्या हैं हम लोगों के पास? द मेजर एडवांटेजेस इंक्लूड बेटर मेंटेनेंस. ओके, बेटर मेंटेनेंस ऑफ 2,3-DPG. तो ये इसकी मेंटेनेंस है, मीन्स एनर्जी के नफ या एफिशिएंट सोर्सेज मौजूद हैं. हायर पीएच है, 5.6 है, जो कि फिर क्या करेगी थोड़ी सी मीन्स बेसिक की तरफ हम जा रहे हैं, सॉरी न्यूट्रल पीएच की तरफ जा रहे हैं एसिडिक से. तो जब पीएच इसकी हायर वैल्यू है तो इट्स नॉट मच एसिडिक, इट कैन नॉट किल द आरबीसीज एज वेल. इम्प्रूव्ड एटीपी सिंथेसिस, क्योंकि 2,3-GP DPG डाइफॉस्फोग्लाइसरेट एंजाइम मौजूद है, तो इस वजह से एटीपी की सिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट पिक के इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं. So yes, students, if we will discuss means the CPD storage capabilities, then we can say CPD increases the level of RBCs in comparison to ACD, acid citrate dextrose. As in if we will collect RBCs after 3 weeks of storage, then we can say there would be 75% of RBCs in case of ACD. But if we are using CPD anticoagulant, then we can say there would be concentration of RBCs equal to 79%. So this is a difference, means CPD is just improving RBCs lifespan. Further, we use another anticoagulant which is known as nucleotides adenine. Okay, NACO et al. Showed that addition of adenine to the cell resulted in restoration of red cells ATP shape, and means ATP की restoration red cells की shape, और इसके अलावा पोस्ट इन्फ्यूजन वायबिलिटी कि इन्फ्यूजन के बाद RBCs की मूवमेंट को भी मतलब इम्प्रूव करता है. तो एडेनिन को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटीकोगुलेंट. अ पॉसिबल एक्सेप्शन में एग्जिस्ट इन केस ऑफ G6 फॉस्फोडेक्सट्रोज डेफिशिएंट डोनर्स के, ऐसे जिनमें GPD6 फॉस्फेट की कमी है, ऐसे डोनर्स के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. फॉर रेस्ट दिस इज परफेक्ट एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ब्लड बैंकिंग. Oxalate and ascorbate, these are also some sort of anticoagulants which are used in blood as anticoagulant agents. Effects of ascorbate on red cells 2,3-DPG is discovered in 1970, found in increases to 3-DPG levels. तो ये जो हमारे पास 2,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट एंजाइम है बेसिकली, उसके लेवल्स इंप्रूव करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी को, एंजाइम के रिएक्शन को स्टिमुलेट करेगा या हेल्प आउट करेगा. उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ATP प्रोड्यूस होगा और सेल्स RBC को ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती जाएगी. Studies by Candler et al. Shows that pure ascorbate has no effects at all. They oxalate and contaminates. It is responsible for increase in 2,3-DPG. तो ये हम कहते हैं कि ओवरऑल हम देखें तो ये 2,3-DPG के ही
जो बेसिकली इंजाइम है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा ही होता है कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग मीन्स ऑक्सलेट एंड एस्कॉर्बेट इफेक्ट. So oxalate precipitates renal calculi even in small quantity, so its use is not practical. तो oxalate क्योंकि renal calculi के लिए या kidney stone formation में भी इसका रोल होता है, इसकी वजह से जो ये वाले एंटीकोगुलेंट्स हैं oxalate एंड ascorbate रिलेटेड, ऐसे एंटीकोगुलेंट्स ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में या ब्लड बैंक्स में हम फिर यूज़ नहीं करते. ओके, अब हम बात करेंगे फर्दर CPDA. CPDA-1 was first developed in 1968 and shown to permit whole blood storage for 5 weeks. मीन्स ये 5 वीक तक ब्लड को स्टोर कर सकता है. और इसके अलावा हम लोग ये कहते हैं कि however regulatory questions regarding safety of adenine especially developed by uric acid stones delayed in licensure of CPDA-1 in USA for 11 years. कि 11 साल तक इसके लिए लाइसेंस जो था वो उनका पेंडिंग में था, और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐड किए गए थे कि ये यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं अगर हम यूज़ करेंगे एडेनिन को एज एंटीकोगुलेंट्स इन ब्लड बैंकिंग. इन दोज 11 years ब्लड बैंकिंग शिफ्टेड फ्रॉम होल ब्लड स्टोरेज टू मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स. तो इसी दौरान फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम होल ब्लड को स्टोर ही नहीं करते, इसके लिए हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, और कंपोनेंट की स्टोरेज के लिए फिर हमें डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स या कंपोनेंट स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट्स रिक्वायर होते हैं. अब एक और एंटीकोगुलेंट्स है जो मोस्ट कॉमनली ब्लड बैंक्स में यूज होता है, दैट इज साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन 2 एंटीकोगुलेंट. ये बहुत बेटर, इसके रिजल्ट बेटर एंड वेस्ट शोड दैट पैक्ड आरबीसी स्टोर्ड इन CPDA-1 रैन आउट ऑफ ग्लूकोज सूनर देन होल ब्लड स्टोरेज इन CPDA-1. तो उन्होंने देखा कि अगर CPDA-1 में अगर होल ब्लड को हम स्टोर करें तो वो जो ग्लूकोज है उसमें कम पड़ जाती है, लेकिन पैक्ड आरबीसी की स्टोरेज में CPD-1 में वो अच्छी है. द सजेस्टेड कंडीशन ऑफ मोर ग्लूकोज टू ओरिजिनल एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन मेकिंग CPD. फिर उन्होंने क्या किया, CPDA-2 बनाया. CPDA का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ जो अननेसेसरी शुगर है प्लाज्मा में या प्लेटलेट्स में, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट मतलब उसको भी आइसोलेट किया जा सकता है, और जो रिक्वायर्ड कंटेंट है बेसिकली उसको ही वो सपोर्ट करेगा, और इस तरह से आरबीसी की ग्रोथ को मेंटेन किया जाएगा. Okay, CP2D 100% more glucose than CPD and 60% more than CPD. तो CP2D में डिफरेंस ये कि इसमें 100% ग्लूकोज होती है और 60% ज़्यादा होती है CPDA-1 के मुकाबले में. द हाई ग्लूकोज कंटेंट ऑफ CP2D इज नेसेसरी बिकॉज इट्स यूज एज एन एडिटिव सोल्यूशन दैट डज नॉट कंटेन सफिशिएंट ग्लूकोज. तो हम लोग कहते हैं कि इसको एज एडिटिव सोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है, और ऐसे ब्लड सेल्स के जो ग्लूकोज डेफिशिएंट हो, जिनमें ग्लूकोज की कमी हो, एनर्जी की कमी हो, तो वहाँ पे भी हम इसको प्रेफर करते हैं CP2D की यूटिलाइजेशन को. सो दिस इज़ द मोर एफिशिएंट बट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ. So if I will conclude the whole lecture, we can say for all sorts of anticoagulants we need to ensure like we should add component specific anticoagulants, जो कि अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि हर ब्लड के कंपोनेंट्स को देखा जाए, फिर उस कंपोनेंट्स को एसेस भी किया जाए कि आरबीसीज आइदर एनर्जी डेफिशिएंट तो नहीं है. अगर एनर्जी डेफिशिएंट है तो CPD-2A प्रेफर किया जाए. अगर एनर्जी डेफिशिएंट आरबीसीज नहीं है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि CPD-A यूज़ कर सकते हैं, CPD यूज़ कर सकते हैं या ACD यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ बेस्ट और आइडियल वी कैन से एंटीकोगुलेंट्स फॉर द ब्लड बैंकिंग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन. दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस lecture. If you have any question you can ask me a question. So now our lecture number 4 is complete. So stay blessed. Allah Hafiz.